Assalamu alaikum, everyone. I hope you're well and staying safe at home. The practice and power of self inquiry involves finding, opening, asking, and listening. And today's show is all about self inquiry. So today's discussion is meant to be a learning journey for all of us, especially in this lockdown when we are all at home. Why not involve ourselves in a purposeful discussion? So you're most welcome to join us with your questions and valuable insights about life. On the journey of life, we sometimes meet people where we connect to them on a different level. So, my today's guest is one of those valued people I recently got connected to. I mostly see him talking about the importance of resilience, persistence, and consistency in life. So, I thought, why not share his knowledge, wisdom, and experience with you? So, Mr. Shahzad Ahmed, he is a life coach, corporate trainer, and an author. Sir, please tell us a little about yourself and your journey in life. Thank you very much, Vajia, for giving me the opportunity to discuss that beautiful topic you have selected for today. I'm obliged and humble. As far as my introduction is concerned, I'm working as life coach and a corporate trainer under the umbrella of I Explore Training Private Limited Company, where we tend to cascade the knowledge upon this subject in actual. We usually tell them only one point agenda, and that is the importance of purpose-driven life. And we are glad that we are going to have a deep dive into this very specific subject with the time going on. Apart from this, I carry with myself 20 years of corporate employment experience, 3 decades of spiritual learning experience, and 3 adversities which I have encountered in life, which makes me what I am today. Inshallah, we are going to discuss all these things in and many other aspects of purpose-driven life today. That's really wonderful, and I'm glad to know that your experience will be shared today on our program and everybody will benefit from it. So, tell me a little what was that particular moment or phase of life that brought you into coaching? आ, वजिया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन मेरी नज़र के अंदर कोचिंग का प्रोफेशन या कोचिंग को अडॉप्ट करना इज नॉट वन टाइम अफेयर इट इज़ नॉट दैट मच कि कोई एक इंस्टेंस हो जाए या स्पेसिफिक फेज ऑफ लाइफ के अंदर one fine morning I wake up and I say that now I'm going to pursue coaching. That is not the case in my viewpoint. It is, to me, it's a gradual process. It comes with time. और ये कोई लर्नड आर्ट नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जाऊंगा, मैं एक डिग्री ले लूंगा और मैं कोच बन जाऊंगा. टू मी इट्स ऑल एक्सपीरियंशियल. जो आपने पिछले 4.5 डिकेड्स के अंदर मैंने कुछ चीज़ें सीखी, उन सबको एक जगह पे कैप्सुलेट करने के बाद अगर मैं ये सोचूं आज कि मेरी इस तमाम एक्सपीरियंस से अगर कुछ ऐसे लोगों को भला हो जाए जहाँ पे मैं अपनी ये तमाम चीज़ें शेयर करके इनकी एनालिसिस उनको पेश कर सकूं और उनको कोई एडवांटेज हो जाए, तो मैं ख्याल है कि इट कैन बी कॉल्ड कोचिंग. एंड इन माय केस, we all know the difference between coaching, mentoring, and corporate training. So without going into the details of that difference, मैं ये समझता हूँ कि कोचिंग जो है एक बड़ा noble cause है, and it is not there to be meant for materialism or anything else. As long as you are coaching people around you to add value in their life, मैं ख्याल कि it is considered to be a sacred thing. जब तक आपके पास कोचिंग होती है, you tend to give all the things you have in your life. Wonderful thought. Wonderful thought. Thank you for sharing it. So we actually, I'm a very curious person myself, and I try and share my knowledge, and I'm a very I seek knowledge as well. So I usually hear this phrase a lot, like find your purpose in life. What is purpose in life? What do you mean by it, or what do you think it actually is? मुझे हंसी भी आ रही है आपके इस क्वेश्चन पे कि बिकॉज दिस इज द वेरी क्वेश्चन वी टेंड टू हियर अ लॉट, स्पेशली इन दीज करंट टाइम्स जहाँ पे हम ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करें एंड एवरी अदर पर्सन इज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि फाइंड योर पर्पस इन लाइफ. और क्योंकि हमारी रोज़ की हसल बसल के अंदर कभी हमें इतना टाइम ही नहीं मिला था, और अब जब टाइम है तो दिस क्वेश्चन बिकम्स मोर एविडेंट टू आस्क फ्रॉम द एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड. इन द मीन टाइम मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत से पुराने जानने वाले भी हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, एंड दे आर गोइंग टू गेट एडवांटेज आउट ऑफ दिस डिस्कशन टुडे. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि फाइंडिंग द पर्पस इन लाइफ, मेरी नज़र में वजिया पर्पस को अगर मैं इनडायरेक्टली लेके चलूँ
तो वी ऑल लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे हमारे पास एक ड्वेलिंग है, और ड्वेलिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्ट, जिस हार्ट के अंदर अल्लाह का घर है, और वो जो अल्लाह का घर है वो लॉक है, and that lock is going to be open with prayers. And to me, praying is cleaning and cleaning is praying. जब आप इबादत और दुआ का सहारा लेते हैं और उस सहारे से होते हुए आप इस क्वेस्ट के अंदर चले जाते हैं, उस क्वेस्ट के अंदर आपको जाके असल में जिंदगी का मकसद और मतलब मिलता है। जहाँ पे आप पर्पस की बात कर रही हैं, आई कैन टेल यू वन थिंग कि इवन बिफोर योर बर्थ वजिया, आपके बालों का रंग, उनकी तादाद, उनकी लेंथ, आपके पेरेंट्स का डीएनए, ये सब कुछ डिफाइन हो चुका था, बिकॉज यू वर मेड फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू बी अकम्प्लिश्ड इन दिस यूनिवर्स। ये वो पर्पस है जिसके साथ हम सब सोल्स इस यूनिवर्स के साथ अंदर आए हैं, और एक यूनिक पर्पस है जो कि हम सब के साथ अटैच्ड है। अब ये हमारा काम है कि हम उस पर्पस को आइडेंटिफाई करें, उसको स्क्रैच करके सरफेस पे लेके आए, और उसके लिए अपनी तमाम तर एनर्जीज को यूटिलाइज करें, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे मैं और आप अकाउंटेबल है। वी विल बी आस्क्ड द क्वेश्चन कि ये जो पर्पस हमें दिया गया था उसके लिए हमने कितना स्ट्राइव किया। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर और भी बात कर सकूंगा, लेकिन टिल नाउ मेरा ख्याल है कि पर्पस की डेफिनेशन ये है कि इट इज समथिंग विच इज ऑलरेडी बीन डिफाइंड, ये चेंज नहीं हो सकता। नाउ इट इज अप टू यू, आपके पास चॉइस है, ऑप्शनल है कि आप इसकी कोशिश करते हैं या नहीं। आप कोशिश नहीं भी करेंगे तो यू विल बी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, और अल्लाह ताला ने आपसे वो काम ले लेना है जिसके लिए आपको अल्लाह ताला ने बनाया है। Great, very well explained. Thank you, Mr. Rizwan, for telling us that it's an excellent topic. I think it's the need of time. Actually, while we are sitting at home, why not learn something new from someone who's experienced? So, my next question: how do you actually differentiate between a need, a want, or a goal in life? Especially for our younger generation, they sometimes confuse things. So, how do you think one can stay focused to their purpose and goal in life? Share your thoughts on this. ब्यूटीफुल। मैं क्योंकि मैं बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे कर रहा होता हूँ जहाँ पे मैं खुद यंग जनरेशन का एम्बेसडर होता हूँ, तो दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम माय हार्ट एज वेल कि नीड और गोल का क्या फ़र्क हो सकता है। हमने अपने एमबीए के दौरान जो कुछ पढ़ा था उसमें हमने थ्योरेटिकल डेफिनेशन तो पढ़ ली थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। नाउ लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन इन रिटर्न कि आपके हिसाब से क्या पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो नीड होगी या वांट होगा? मैं अगर इसका जवाब आपको बताना चाहूँ तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं। We have to connect these dots the way nature has made us to do that. So it is not the want for us. It is mandatory for us to strive for purpose of life. अब पर्पस ऑफ लाइफ को स्ट्राइव करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? मैं अपनी ऑडियंस को, जैसे आप बता रही हैं कि यंग लॉट बहुत ज़्यादा है, उसमें मैं इन चीज़ों को उन लोगों को नज़र से, नौजवान बच्चों और बच्चियों के हवाले से अगर मैं देखूं और इस क्वेश्चन को आसान करके बताना चाहूँ, यानी कि ऐसे कि वो घोल के पी लें आराम से, तो द सिंपलेस्ट definition which I come across, which I usually tell the people, is a 4-point agenda. अगर आज वजिया असलम पर्पस ऑफ लाइफ को फाइंड आउट करना चाहती हैं तो देयर कम्स द 4-point एजेंडा फॉर यू वजिया, एंड इट इज दैट सिंपल एज 2 + 2 = 4। इससे ज़्यादा आसान हो नहीं सकता। अगर ये समझने के बाद भी आप ये कहें कि मुझे समझ नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आप समझना चाहते नहीं हैं। तो सबसे पहला, आउट ऑफ 4 2 चीज़ें जो है वो इंटेंजिबल है, नज़र नहीं आएंगी, अपीयर नहीं होंगी, और 2 चीज़ें आपको टेंजिबल करना पड़ेंगी। नंबर 1, start praying for purpose. Start praying for purpose of life. अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दो, and now you are going to see the magic. एक मैजिक होगा, एक जादू हो जाएगा आपकी जिंदगी में। अचानक से आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, अचानक से ऐसे हाल, इत्तफाकन कोई चीज चल जाएगी, आप सिग्नल पे खड़े होंगे, कोई बंदा आके आपको कुछ बता के चला जाएगा। मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट
praying for purpose of life. Number one, start praying for it. Number two, stop the autopilot of your life. बहुत सी जिंदगी के अंदर चीजें ऐसी होती हैं, हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, इट वर्क्स इन ए सेफ जोन. ये लॉजिक के ऊपर काम करता है. ये हमेशा शहजाद को वो चीजें बताएगा जहाँ पे शहजाद को कोई खतरा ना हो सके. ये हमेशा हमें निट कर देगा जीरो रिस्क के साथ. तो जब भी आप इस तरह की जिंदगी में जाएं जहाँ पे आप पर्पस ऑफ लाइफ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे आप ऑटो पायलट को रोक दें. जो चीजें आपके पास ऑटो आती हैं, आप जा रहे हैं, आपको किसी बंदे की बात बुरी लगी, आपको एकदम से उसके बारे में बुरा ख्याल आया, ये ऑटो जनरेटेड है. यू स्टॉप ऑटो जनरेशन. ऑटो पायलट को होल्ड कर दे. जहां पे भी ऑटो पायलट का काम आए उसको गिव इट ए होल्ड और थोड़ा सा टाइम लेके कॉन्शियस डिसीजन लेने की कोशिश करें. ये वो दोनों चीजें हैं जो कि इंटेंजिबल होंगी. When coming to the third part out of 4, number 3 is start writing your goals. This is the thing which you are sharing with me offline as well. Start writing the goals of your life. मैं आपको बताऊं कि मेरी पूरी की पूरी जिंदगी एक एक्सेल शीट के अंदर ड्राफ्टेड है. मेरी पूरी की पूरी जिंदगी एक एक्सेल शीट के अंदर ड्राफ्टेड है, जिस एक्सेल शीट के अंदर मैं हर साल उसको रीलुक करता हूँ. आई कैन टेल यू कि आज से 50 साल बाद जो काम मुझे करने हैं उनके लिए आज यानी कि मंडे 29th of June 2020 मैंने क्या किया. तो when today morning I was exercising, I was running, I was not running for today. मैं इसलिए आज रनिंग कर रहा था कि by the age of 90 I want to be a role model for the Muslim Ummah कि एक 90 साल का बूढ़ा शख्स अपने आप को फिजिकली एक्टिव और हेल्दी रख सकता है. जब मुझे उस वक्त अपने आप को रोल मॉडल बनाना है तो मुझे आज उसके लिए मेहनत करनी है. आज बहुत से लोग मुझे जुनूनी कहते हैं, आज आपको बहुत से लोग मैनियक कहेंगे, आज आपको बहुत से लोग फैनेटिक कहेंगे. लेट देम आस्क देम, लेट देम डू दैट. बिकॉज अंग्रेजी में कहते हैं कि the whole universe stand aside and let the person go who knows where he is going. आपको पूरी की पूरी यूनिवर्स कंस्पायर करती हुई नजर आएगी जब आपको ये पता होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं. तो मैं बहुत ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा. मैं आप अगला सवाल भी कर लें और यू टेक द कमेंट्स ऑफ द ऑडियंस एज वेल. बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया. आई ट्रूली बिलीव इन इट. और मैं वही बात है जैसे जब हमने पहली दफ़ा ज़िंदगी में कम्युनिकेट किया था एंड आई टोल्ड यू कि आप बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो बात कर रहे हैं जो मैं सोचती हूँ. इट कनेक्टेड समवेयर एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टुडे एज वेल. आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया है. और सबसे पहली जो इनटेंजिबल चीज़ आपने बताई थी उसके हिसाब से मैं कहूँगी कि आपको क्लूज़ भी मिलते हैं एनवायरनमेंट में. आपको वो क्लूज़ भी मिलते हैं. बी रेडी टू एक्सेप्ट दो साइन. जब हम ऑटो में चलते रहते हैं तो हम शायद वो साइंस मिस कर देते हैं कभी कभी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो साइंस भी देखें. तो ये रिजवान सैदल साहब का एक क्वेश्चन है. आई वुड लाइक टू पुट दैट अप फर्स्ट. हाउ टू ड्राफ्ट अ कंटिजेंसी प्लान for purposeful aim in such a changing world. Take the COVID, it has ruined all the world. Say something. That's a good question. रिजवान, मैं 4 पॉइंट एजेंडा बता रहा था, उसमें मैंने चौथा पॉइंट नहीं बताया था. राइटिंग द गोल्स के बाद टेंजिबल में चौथा पॉइंट, एंड दैट फोर्थ पॉइंट इज आंसर टू योर करंट क्वेश्चन, एंड इट सेज फेल फास्ट, फेल ऑफन, फेल फास्ट एंड फेल करेजियसली. ये वो चीज़ें जो आपको ना बचपन में स्कूल में बताई गई हैं, ना हमारे बड़ों ने कभी हमें बताई हैं. बिकॉज हम कंपेटिटिव वर्ल्ड में रहे और एजुकेशनल कैरियर में हमने हमेशा ये सीखा कि दूसरे को बीट करके ही फर्स्ट आना है. मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस कंपटीशन की बात कर रहे हैं? हम तो पूरी यूनिवर्स में सब लोग एक हैं. मैं और आप एक हैं. तो फिर मैंने बीट किसको करना है? क्या मैंने अपने आप को ही हरा के खुद से जीतना है? तो वी आर नॉट इन द कॉम्पिटिशन विद अदर्स. तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर है कि कॉन्टिजेंसी प्लान बनाना कैसे होता है, खासतौर पे कोविड के दौरान. यू नो, कोविड के बारे में मैं अपने मेंटोर को उस दिन क्या कह रहा था. मैं अपने मेंटोर से बात कर रहा था तो आई टोल्ड हिम कि द वे आई सी दिस कोविड थिंग, आई सी इट दैट इट हैज अराइव्ड इन द होल वर्ल्ड ओनली टू मेक शहजाद अहमद fly even higher. Beautiful. And that is that much important to me
कि मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा रिज़वान कि कॉन्टिजेंसी प्लान उन चीज़ों का बनता है, जिनके ऊपर आप समझते हैं कि ये आपके प्लान को ख़राब करने आई हैं। अरे यार! ये चीज़ें तो आपको और ऊँचा उड़ाने के लिए आई हैं। आप मुझे बताइए कि इस कोविड के अंदर अगर आप वो काम अभी तक नहीं कर सके, जो आप नॉर्मल लाइफ़ में करना चाहते थे और अभी तक आपने नहीं किए, then the problem is not the time with you. Then the problem is priorities. I mean, COVID has arrived in order to make your plans executed in a fast pace. तो contingency नहीं बनानी, इसको और ज़्यादा स्पीड अप कर देना। अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दे दिया है जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो गई हैं। अब आपका काम ये है कि आपके जो अपने कंट्रोलेबल एक्शन हैं, उनको एक्सटर्नल स्पीड के साथ पेस अप कर लें। आज मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, आज मेरी स्लीप के पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गए हैं। आज वो टाइम आ गया है जहाँ पे मैं पहले से ज़्यादा काम कर रहा हूँ। Why? Because I have to keep my pace with the pace of the external environment. So these contingency plans work only when you are yourself ready to change yourself for the bigger purpose of life. So beautiful. और अगेन आप कुछ कनेक्ट कर दिया आपने, मैं वो मेंशन करना चाहूँगी। व्हेन एक्चुअली कोविड स्टार्टेड एंड वी वर ऑल सिटिंग एट होम, तो हम टीचर्स को यूजुअली कहा गया कि हम घर से यूट्यूब वीडियोस बना के ना शेयर करें बच्चों की लर्निंग के लिए एंड ऑल। सो वी स्टार्टेड शेयरिंग दैट। और मेरी कुछ फ्रेंड्स ने देखा कि तुम तो अच्छी भली वीडियोस बनाती हो, व्हाई डोंट यू डू योर कोचिंग वीडियोस? एंड आई वाज लाइक, आई नेवर थॉट ऑफ इट एंड आई कैन नॉट डू इट। बट देन देयर आर टाइम्स जब आप वो करते हैं जो आपने लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में प्लान किया होता है एंड यू स्टार्ट डूइंग इट अर्लियर। I started doing that, and I think I did the best thing. Why to wait for next 2-3 years and change your plan accordingly? So sometimes plan change karna padta hai and you actually work on it and it gets beneficial for you. And don't be afraid of failure, as you said. So my next question for you now. मैंने बहुत देखा है कि आप you talk a lot about success. Just to define it a little bit, what do you think success is, and does success is equals to happiness? मुझे सबसे पहले तो वजह ये बताएं कि बहुत से लोग कहीं ऐसा ना समझ रहे हों कि आपने ये सवाल कहीं रट्टा लगाया हुआ है। आप मुझे पहले बताएं कि हाउ डू यू फील, आप ज़्यादा खुश किस वक्त होती हैं, यानी कि कोई इवेंट आ जाए या कोई कामयाबी आ जाए, व्हेन यू फील योरसेल्फ टू बी अ हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट? I think मेरे बच्चों की खुशी मुझे बहुत खुश करती है। My family, when they are happy, I'm happy. Related to my teaching thing, if my kids are happy in my classroom, it makes, like, seeing someone happy makes me happy. It doesn't have to be linked to anything. यू सी, आप अपने आखिरी जुमले के ऊपर गौर करें। इट डजंट हैव टू बी लिंक्ड विद एनीथिंग। जो हैप्पीनेस है ना वजिया, अगर मुझे ये कहा जाए कि मैंने अपने तमाम देखने वालों को इस तरह से वायर अप करना है कि वो हैप्पीनेस और सक्सेस के डेफिनेशन के ऊपर अभी से अपने आप को खुश समझना शुरू हो जाए, तो इट कैन गो लाइक दिस। इट विल टेक जस्ट अ मोमेंट where you people will decide that from this moment onward, I'm going to remain happy whatever the case is. And that's all. And that's all. आप दुनिया की खुशकिस्मत तरीन शख्स बन जाएंगी अगर आप खुद से ये सोच लें कि मैंने खुश रहना। और आप दुनिया के सबसे ज़्यादा विक्टिम माइंड रहेंगे जब तक आप ये सोचते रहें कि मेरे साथ फलां चीज़ हो जाती तो मैं खुश हो जाता। I, in my personal professional life, have encountered many people, and all senior by me. तमाम सीनियर मैंने टॉप मैनेजमेंट के लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई, जिन्होंने ऑफ द लाइन, आफ्टर द ड्यूटी, ड्यूरिंग द ट्रेवल, नाइट स्टेज कहीं पे कॉन्फ्रेंस में गए, वहाँ पे बात हो रही है, ऑन द बेड हम ट्विन शेयरिंग में हैं और अपने अपने बेड पे बैठे हुए और बात कर रहे हैं, एंड द लीडर of the organization saying me, Shazad, I consider myself a success in professional career, and still at the same time, I take myself as a failure father. You tell me कि उस बंदे का क्या माइंड फ्रेम होगा, वो किस तरह से रोज के रोज जिंदगी गुजार रहा होगा और मरता होगा। तो ऑल दीज थिंग्स गो फ्रॉम टाइम टू टाइम, जहाँ पे आपको ये मौका मिलता है कि आप
चीज़ों को देख लेते हैं कि आपकी हैप्पीनेस और सक्सेस का क्या फ़र्क है। हैविंग सेड दैट, मेरी नज़र के अंदर सक्सेस गारंटी नहीं है हैप्पीनेस की। सक्सेस गारंटी नहीं है हैप्पीनेस की। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, बहुत से लोग आपको सक्सेसफुल मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हैप्पी भी हों। मेरी नज़र में तो इसकी उल्टी डेफिनेशन है, और उसकी उल्टी डेफिनेशन ये कहती है कि आप आज डिसाइड कर दें कि आपने खुश रहना है, तो आज आप दुनिया के सक्सेसफुल तरीन इंसान बन जाएंगे, वॉट एवर द डेजिग्नेशन यू आर कैरिंग। जिंदगी में सड़क पर खड़े होने वाला बेगर किसी कंपनी के सीईओ से ज्यादा सक्सेसफुल और हैप्पी पर्सन हो सकता है। आज हमारा मेंटल जो फ्रेम है वो इस तरह से बना हुआ है वजिया, जहाँ पे हम सक्सेस को हमेशा कंपैरेटिव एनालिसिस में देखते हैं कि फलां शख्स वजिया इतने ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ डील कर रही है और शहजाद इतने कम लोगों के साथ डील कर रहे हैं, तो वजिया ज़्यादा सक्सेसफुल है। दिस इज नॉट द केस। मैं जस्ट टू रैप इट अप बिफोर वी गो इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं लोगों की आसानी के लिए 3 पॉइंट एजेंडा बता देता हूँ, जहाँ पे आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करने हैं कि वो हैप्पीनेस और सक्सेस को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज करे। तो इफ यू आर इनटू अ डिफिकल्ट टाइम एंड यू वांट योर माइंड टू थिंक दैट इट इज हैप्पी, तो आपके पास 3 पॉइंट एजेंडा में आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। नंबर 1 इज जोरो सर्कल। जोरो सर्कल स्टेट्स कि आप छोटी छोटी सर्जिकल डिटेल्स के अंदर चले जाएं। डिफिकल्ट टाइम्स है, चैलेंजिंग टाइम आ गया है, आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाएं और छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना शुरू कर दें। आपको बड़ी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी एंड यू टेंड टू बिकम मोर हैप्पी एंड सक्सेसफुल। नंबर 2 सेज टेट्रस इफेक्ट। टेट्रस इफेक्ट, टेट्रस इफेक्ट स्टेट्स कि आपका माइंड जो है उसको आप हमेशा पॉसिबिलिटी की तरफ लेके जाएं। आपका माइंड हमेशा आपको ये कहेगा कि ये काम नहीं हो सकता। यू ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग अ वे कि यार ये काम बाकी लोग कहते हैं नहीं हो सकता, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि अगर मैं ये काम करूँ तो ये काम हो जाएगा, मैं कौन से स्टेप उठाऊं तो ये काम हो जाएगा। तो फर्स्ट वन वाज जोरो सर्कल, सेकंड वन वाज टेट्रस इफेक्ट, एंड नंबर 3 एंड द इंटरेस्टिंग वन इज फॉलोइंग अप। हमने जिंदगी में हमेशा फॉलिंग डाउन सुना है, इट सेज फॉलिंग अप। फॉलिंग अप का मतलब ये है कि जैसे अभी रिजवान बात कर रहे थे कि वेन एवर यू कम अक्रॉस अ डिफिकल्ट टाइम इन योर लाइफ, दैट इज द पॉइंट जहाँ पे आपका मोमेंटम नीचे की तरफ ब्रेक होता है। यू स्टार्ट थिंकिंग दोज थिंग्स एज एलिवेटर्स फॉर योर सेल्फ, और वही वो पॉइंट होगा जहाँ पे बाकी के लोग गिरते होंगे और आप उन्हीं चीज़ों को फुट स्टेप बना के वहाँ से ऊपर की तरफ एलिवेट होना शुरू हो जाए। So to sum it up, one was Zoro circle, second one was Tetris effect, and the third one is falling up. वेरी नाइस। ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, सक्सेस और हैप्पीनेस, क्योंकि अक्सर हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि सिर्फ सक्सेस ही हमें हैप्पी करती है और हम बहुत ही मटीरियलिस्टिक चीज़ों से उसको अटैच कर देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि यू कैन बी हैप्पी इन एट एनी टाइम इन लाइफ इफ यू डिसाइड टू बी हैप्पी, और learn to be happy in the present moment, learn to live in now and you will be happier. तो इससे हम अब एक और मेरा क्वेश्चन ड्राइव करता है कि कभी कभी ऐसे होता है कि वी हैव we make choices, we make decisions, and there are sometimes regrets attached to them. So how to get rid of regrets related to our own choices and decisions in life, or maybe someone else's decision and choices that they have taken? Around 2 months back, I was traveling with my two of my colleagues, और वो टाइम था, 3-4 महीने पहले की बात है। वो टाइम था जहाँ पे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल रेजिग्नेशन दे चुका था और मेरा नोटिस पीरियड चल रहा था। तो दैट वाज हैप्पीएस्ट टाइम फॉर मी कि जहाँ पे मैं बड़े आसानी से ट्रैवल कर रहा था। आई न्यू कि मैंने अभी बड़े अरसे के बाद अपना कुछ काम शुरू कर देना है। द कलीग्स हु वर ट्रैवलिंग विद मी इन द कार, they asked me a question कि यार अब आप क्या करोगे? तो मैंने उन्हें बताया कि लाइफ कोचिंग और इससे कोऑपरेटिंग, एंड द डिस्कशन started around regrets and all that stuff. And the person sitting beside me, my colleague, asked, and I was stunned for a moment and one surprised question. And I said, Saqib, आप कौन से रिग्रेट की बात कर रहे हैं? कैसा रिग्रेट हो सकता है? वजी, अब मैं आपसे पूछता हूँ,
हम किस चीज़ के ऊपर रिग्रेट करेंगे? आई मीन जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, उसके पास क्या होता है? I think या तो ये हो ना कि मैं कोई डिसीजन लूँ और वो गलत हो जाए और मेरे पास से किसी चीज़ का लॉस हो, तो मैं कहूँ कि मुझे रिग्रेट हो रहा है, ठीक है? या किसी बंदे ने मेरे साथ मैं कहता हूँ कि किसी बंदे ने मेरे बारे में बहुत गलत मेरा तो क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से तो कुछ कर ही नहीं रहे। You are just connecting the dots in the universe. You are here with a pre-planned agenda. आप कैनवस के ऊपर ऑलरेडी स्ट्रोक हो चुके हैं। आप कैनवस का एक ऑलरेडी हिस्सा हैं। आपने सिर्फ अपना रोल प्ले करना है और आप जिस चीज़ के बारे में रिग्रेट की बात कर रही हैं, मैं मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि यार आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आज 10 लाख का लॉस हो जाता है, राइट? आज आपका 10 लाख लॉस हो जाता है, आप कहते हैं मुझे बड़ा रिग्रेट है, मेरा नुकसान हो गया। भाई ये 10 लाख आए कहाँ से थे? क्या ये आप लेके आए थे? नो। क्या आप जब फौत होते तो ये 10 लाख आपके साथ जाते? द आंसर इज़ नो। So why to regret and what to regret on? To me, there is no such decision in life जिसके ऊपर आपको regret हो. Regret is the sheer disappointment on the existence part. आपको बड़ी सुपर पावर के ऊपर अगर जब तक यकीन है और अंधा यकीन है, आपकी जिंदगी के अंदर रिग्रेट जैसा लफ्ज डिक्शनरी में आ नहीं सकता। very nicely explained. अब लेकिन कभी-कभी ऐसे होता है कि ये बातें लोगों को किताबी लगती हैं, बट देन पीपल लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस कि वाक़ई हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हम समझते हैं कि है और हम उस चीज़ को रिग्रेट करते हैं जो कि हमारी थी ही नहीं। तो इसके साथ आती है द फैक्टर ऑफ एक्सेप्टेंस। व्हेन यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, यू लर्न फ्रॉम व्हाटएवर स्टेट यू वर इन। सो आप एक्सेप्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ एंड व्हाट इज एक्सेप्टेंस एंड हाउ डू यू प्रैक्टिस इट इन लाइफ? देखो वजीर, ज़िंदगी के अंदर बहुत से मौके ऐसे आए हैं जहाँ पे एडवर्सिटीज़ ने, चैलेंजेस ने, टफ टाइम्स ने बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। तो एक्सेप्टेंस को हमारी सोसाइटी के अंदर एक सिनोनिम के साथ अटैच कर दिया जाता है एंड पीपल टेंड टू सी इट एज ए फेलियर, या आप ये समझ लें कि गिविंग अप ऑन समथिंग, या आप ये कह लें कि कंटेंटमेंट इतनी हो गई कि यार हार मान ली कि ठीक है यार ऐसे है तो ऐसे ही सही। To me, acceptance needs courage. It needs bravery. It needs the height of the character to accept the realities of the universe. मैं ये कहता हूँ लोगों को आई थिंक आपका इंटरनेट कनेक्शन, आपका इंटरनेट कनेक्शन आई थिंक I hope I'm back. या यू आर। हाँ, ये टेक्नोलॉजी डिसीव करती रहती है, नो प्रॉब्लम। मैंने इसके साथ ज़िंदा रहना सीख लिया तो कोई मसला नहीं है। जब ये अगर मैं ऑफ चला भी गया तो आप आपके लिए ईज़ी सॉल्यूशन ये है कि अगर मैं ऑफ चला भी गया तो यू रिपीट व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड सो फार एंड यू कैन क्लोज़ द प्रोग्राम एनी टाइम, क्योंकि बेसिक कंटेंट हम डिलीवर कर चुके हैं। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। जब ये मौका आ जाए वजीहा कि you look at the thorn and you start looking at the flower. You look at the night and you observe the daylight. When you look at the adversity and you start looking at an opportunity, that will be the time जहाँ पे आपको acceptance जो है failure के बजाय success नजर आना शुरू हो जाएगी। आप यकीन करें कि ज़िंदगी के अंदर बहुत से लोग, मुझे अब ऐसा लगता है कि अ, उन्हें एक्सेप्टेंस का पता ही नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यू टेक द होल यूनिवर्स एज ए कुकिंग बाउल, जिसके अंदर मैं और आप कुक हैं, और हमने उस कुकिंग बाउल के अंदर एक रेसिपी बनानी है। उस रेसिपी के अंदर मैं और आप हर बंदा एज ए कुक अपने 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 हिस्से की इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं। आप उस बाउल के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाल सकती हैं वजिया? यू कैन पुट हेटर, हेट, एंगर, jealousy into that as an ingredient, and you have an option of putting in generosity, giving intent, love, affection, all these things as an ingredient into that cooking bowl.
इट इज़ अप टू यू कि आप उसको कैसा कुक करना चाहती हैं। तो मेरी नज़र में जो एक्सेप्टेंस है, इट नीड्स ब्रेवरी एंड हाइट ऑफ कैरेक्टर जो हर किसी के अंदर नहीं होता। द acceptance is something which few people possess, and whenever you are going to see any person accepting the realities, you salute him on my behalf. Seriously, seriously, that's a nice thing actually. Or it really takes courage to accept things and accept reality and live in reality. So I would like to ask, acceptance ka total opposite. So with acceptance, sometimes come rejection. So when you are actually expecting कि acceptance होगी, rejection हो जाती, maybe job में, relationships में, how to deal with rejection at work or in relationships? मुझे ये बताओ अजय कि रिजेक्शन किसकी ज़्यादा जो है वो खतरे में डाल सकती है आपको? क्या लोगों की रिजेक्शन या अल्लाह ताला की रिजेक्शन? जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट कि पूरी दुनिया की कायनात के तमाम लोग आपसे बहुत खुश हों और अल्लाह पाक आपसे नाराज़ हो जाए, तो क्या आप ज़्यादा रिजेक्टेड फील करेंगी या नहीं? योर आंसर वुड बी येस, ठीक है, ऑब्वियसली। अगला मेरा कमेंट ये है कि अल्लाह ताला जैसी ज़ात जिसको आप इतनी ज़्यादा पसंद हैं, वो आपको कभी रिजेक्ट नहीं करता। आप कुछ भी कर लो, वो आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। यू बीइंग द मदर, यू टेल मी, आपका बेटा जो मर्ज़ी करके आ जाए, आफ्टर ऑल ही इज़ योर सन। आप Yeah, उसको अनकंडीशनल लव देती हैं। sure. आप फिर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। So I would like to thank the Facebook user. I think they actually like my answer. आप फिर वापस आ गए, thank God. So हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी ना ये रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस और ये रिग्रेट ये तमाम चीज़ों को देख चेक कर रही है टेक्नोलॉजी। और मैं बात कर रहा था कि रिजेक्शन जो है, रिजेक्शन इज़ जस्ट अ माइंड गेम। आज आप ये सोच लें कि दुनिया का कोई शख्स भी उसके पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो आपको रिजेक्ट करे या सिलेक्ट करे। रिजेक्ट या सिलेक्ट करने का राइट सिर्फ उस ज़ात को है और उस ज़ात ने आपसे ये प्रॉमिस कर लिया है कि किसी भी हालत में वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते। आज से 27 years ago from today, it was probably 1993 November, मुझे एक ऐसी एडवर्सिटी का सामना करना पड़ा जहाँ पर आई वाज गॉन केस, जहाँ पे पीपल थॉट दैट आई एम गोइंग टू डाई। और उसके बाद अल्लाह ताला ने मिरेकुलसली मुझे वापस ज़िंदगी में लेके आए और वो 2 साल मैंने हेल्पलेसनेस के अंदर गुजारे। एंड व्हेन आई वाज बैक इनटू द लाइफ, the biggest adversity of the life I encountered was the societal rejection. You know what happened? tell At me. that time, at that time, the whole society around me rejected me and took me as a failure in education. And I was the student who always had stood on the victory stand. मेरी इनिशियल प्राइमरी एजुकेशन के अंदर लोगों के दरमियान फर्स्ट पोजीशन की कभी लड़ाई नहीं होती थी। They always had the competition for second and third position because they all knew कि पहली position शहजाद की है। And this was the same Shahzad who, after that physical adversity, was facing a situation जहाँ पे educational institutes इसलिए admission नहीं दे रहे थे शहजाद को कि शहजाद हमारे कॉलेज का रिजल्ट खराब कर देगा। You know how much bigger rejection you can encounter other than this one. So sometimes rejections give you more elevation. Sometimes rejections make you work while the others are sleeping. And sometimes rejections tell you that you are bigger than what you think you are. And that was the rejection of the society, which made me stood again on the victory stand. वहीं पे वही कॉलेजेस थे जिन्होंने लोकल न्यूज़पेपर्स के अंदर मेरी सक्सेस स्टोरी को प्रिंट करवाया. And you know how much I carry 3.96 CGPA out of 4 in my university career. और मेरे तमाम दोस्त मेरा अभी भी मजाक उड़ाते हैं. So you know rejection is sometimes good for you, but the bigger perspective, nobody has the right to reject you, and the power which has the authority, अल्लाह ताला ने के पास अथॉरिटी है मेरे भाई। अल्लाह ताला ने आपको गारंटी दे दी है कि अल्लाह ताला आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। अल्लाह ताला कभी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। तो यू स्टे हैप्पी, यू स्टे रिलैक्स, यू आर द ब्यूटीफुल सोल ऑफ द वर्ल्ड। और faith
faith is the key, I think. Faith in Allah Mia. Abrar Ahmed Wani साहब ने अब join किया. He's saying I joined late. Did I miss the topic about soul? Not actually, but yeah, you are late. So you can ask your questions, push your questions in, and we will be happy to answer. Or you can give us any insights that you like to give. We will be happy to share that as well. So actually, yeah, we are coming close to wind up the program. So let's make it, a conclusion kind of thing for people who are watching. Okay, how to discover our purpose in life and how to align our purpose of life to our goal in life. Shine some light on it. मैंने यहाँ पे ना अपने अगेन वो जो बच्चे बच्चियाँ यूनिवर्सिटी के हैं उनकी ज़िंदगी आसान करने के लिए एक फार्मूला निकाला हुआ है और वो फार्मूला जो है ना यहाँ पे मैं ऑन एयर बताता हूँ तो आई होप कि वो लोगों को पसंद भी आएगा वो रिटेन भी करेंगे और समझ भी जाएंगे. Formula says that you have decided to live your life upon purpose and purpose you have taken it as a bigger thing जो कि एक बड़ा why है आपकी ज़िंदगी का जिसके ऊपर आप पूरी की पूरी ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं. Now when you have landed at that point of time, now comes the point जहाँ पे ये वाला सवाल आता है कि from where to start and what to do. And the answer is very simple. You take one word in your mind and that is known as shape. SHAPE, shape. आप इसको ज़हन में रखें आपको अपनी ज़िंदगी में पर्पस के ऊपर काम करना आसान हो जाएगा. Now what is this shape? Shape stands for SHAPE और ये S जो है S stands for spiritual gifts which had been given to you. अल्लाह ताला ने आपको यूनिक गिफ्ट दिए हुए वजीह जो ना शहजाद के पास हैं ना अब्रार वानी साहब के पास हैं ना ही रिजवान सैदल साहब के पास हैं. तो आपके पास कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जिनका सिर्फ आपको पता है. यू फाइंड देम आउट फॉर योरसेल्फ एंड अगेन साइकिल वही कहता है कि स्टार्ट प्रेइंग फॉर देम. दुआ शुरू करें और दुआ से एक ऐसा मैजिक शुरू होगा कि आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएंगे. नेक्स्ट कम्स एच. शेप के वर्ड के अंदर अगला लेटर आता है एच. एच स्टैंड्स फॉर हार्ट. आपके दिल के अंदर अल्लाह ताला ने बाय डिफॉल्ट एंड बाय डिजाइन दुनिया के लिए लव रखा है, गिविंग इंटेंट रखी है, मोहब्बत रखी है. यू स्टार्ट स्प्रेडिंग इट फॉर अदर्स. आप बिकम द गिवर इंस्टेड ऑफ टेकर. नाउ सेकंड वन इज हार्ट. द थर्ड वन इज ए. शेप के अंदर एस एच के बाद ए आता है एंड ए स्टैंड्स फॉर एबिलिटीज. मुझे मैथ्स से शुरू से नफरत है लेकिन मैं लिखने में लिटरेचर में आप मेरे से उर्दू की किताबें लिखवा दें, मेरे से आप अंग्रेजी पूरे दिन पढ़ा दें, आई विल डू दैट. आप मेरे से ड्राइंग करवा लें, मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे मैथ समझ नहीं आता. तो दिस इज द एबिलिटी विच आई हैव एंड दिस इज द एबिलिटी विच आई डोंट हैव. तो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द पर्पस ऑफ योर लाइफ, फाइंड आउट योर एबिलिटीज. ए स्टैंड्स फॉर एबिलिटीज. अपनी एबिलिटीज को फाइंड आउट करें. वंस यू आर डन विद द फाइंडिंग आउट ऑफ योर एबिलिटीज, रिफाइन देम, इन्वेस्ट ऑन देम, ट्रेनिंग्स लें, आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने मेंटोर्स ढूंढें, उसके ऊपर किताबें पढ़ें, यूट्यूब चैनल्स देखें और आप अपनी एबिलिटीज़ को निखार पैदा करें, उसके अंदर एक पॉलिश और एक रिफाइनमेंट लेके आए. जब आप ये तीन चीज़ें कर लेंगे तो उसके बाद चौथी चीज़ आती है शेप के अंदर जिसको हम पी बोलते हैं एंड पी स्टैंड्स फॉर पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी ये कहती है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को यूनिक बनाया है. जब आप यूनिक हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी उस यूनिकनेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें. फॉर एग्जांपल मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी के एक हिस्से में आके मुझे ये पता चला कि मैं पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छा हो सकता हूँ, तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट थिंग. तो पी स्टैंड्स फॉर पर्सनैलिटी. अपनी पर्सनैलिटी की जो भी ट्रेट्स हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, आप ज़्यादा टॉकेटिव हैं या आप ज़्यादा क्वाइट हैं, आप केयर फ्री हैं या आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं एंड एवरी पर्सनैलिटी ट्रेट इज़ गुड टू हैव. आपकी जो भी पर्सनैलिटी ट्रेट हैं उनको एक्सप्लोर करके उनके ऊपर लिव अप करें. एंड द लास्ट वन इज शेप के अंदर ई. ई स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंसेस. मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर आपने जो कुछ भी कमाया है वो सिर्फ आपके एक्सपीरियंसेस और तजर्बे. आप उन तजर्बों को एक जगह पे कैप्सुलेट कीजिए,
उनको एनालाइज कीजिए और उनको एनालाइज करके उनकी एक समरी बना के देखिए कि आपने उनसे क्या सीखा. Now, all these things, SHAPE, shape. Shape tells you that you are going to start the life which is purposely driven. very nicely explained. बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपने. अब्रार अहमद वानी साहब का भी कमेंट ले लेते हैं. He's saying it's called you factor. It's only you who can explore yourself, and there will be game only when you have opponents. And life without a game is useless and purposeless. Okay, thank you for sharing this. So, आपने actually, we have come towards the end of our program. आपने बहुत अच्छा sum up किया. और what I have learned, my takeaway from this program is actually, purpose in life is not only related to your career or your profession in life. Your purpose in life can be anything other than that as well. So when we relate our purpose of life or goal in life with a career or a profession, it's something different. So purpose in life is totally different, and you have explained it really well. Thank you for that. So we would like to say, I think, thank you to our audience for joining us, and I'm glad we have finished it in time. Thank you for being so precise. Any last message that you would like to convey to our audience? Thank you very much, Vajia, for giving me the opportunity in the last of the program. मैं जैसे आपसे बात कर रहा था, अभी आपने जैसे बोला भी कि प्रोफेशन के साथ पर्पस को अटैच करना ऑप्शनल नहीं है. ये मेरी नज़र में गुनाह है. पर्पस को सिर्फ प्रोफेशन के साथ अटैच कर देना गुनाह है. पर्पस इज अ होलिस्टिक व्यू. पर्पस के साथ सिर्फ प्रोफेशन एक पार्ट हो सकता है. इट्स नॉट द होल स्टोरी. एंड दिस इज द पॉइंट जो कि मैं अपनी तमाम ऑडियंस को अपने तमाम प्रोग्राम्स के अंदर बताता हूँ. आई टेंड टू टॉक अबाउट 360 डिग्री JLT. एंड JLT स्टैंड्स फॉर जर्नी ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन. एंड सिंस इट इज 360 डिग्री, ये ट्रांसफॉर्मेशन जिंदगी की पूरी होलिस्टिक व्यू के अंदर आती है. जहाँ पे वजिया अगर टीचर हैं तो एज ए टीचर भी उन्होंने पर्पस के ऊपर ज़िंदगी गुजारनी है. इफ़ शी इज़ मदर तो उन्होंने एज ए मदर भी अपनी ज़िंदगी पर्पस पे गुजारनी है. एंड इफ़ शी इज़ ए फ्रेंड टू अ फ्रेंड तो फिर एज ए फ्रेंड भी अपनी पर्पस ड्रिवन लाइफ गुजारनी है. तो वेन एवर यू कम अक्रॉस अ पॉइंट जहाँ पे आपको पर्पस ड्रिवन लाइफ के ऊपर और कुछ सीखना है या पूछना है, या यू कैन शेयर सम कमेंट, यू मे विजिट मी और वजिया ऑन आवर वेबसाइट्स. मेरी वेबसाइट जो है वो www.ixplortraining.com है. और मेरा एजेंडा ओनली वन पॉइंट एजेंडा है. मैं पूरी यूनिवर्स, पूरी दुनिया के अंदर पर्पस ड्रिवन लाइफ का स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ. और मेरी ज़िंदगी का महवर सिर्फ पर्पस है. पर्पस के अलावा ज़िंदगी मकसद नहीं रखती. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी suggestions, take me as your brother. We are one family unit. You come across with me or Vajia, share your comments, and we are going to link you up again. Thank you, Vajia, for joining me and giving me the opportunity. My pleasure, my pleasure. You can also follow me on Instagram. My ID is thinking.outofthebox, or on the website www.thinking-outofthebox. And I'm here only to simplify life for people. So I'm trying my best to do it and provide knowledge and awareness to people. So my purpose is actually simplifying other people's life and make them live happily as much as I can. So see you later. Thank you very much. I think we will go offline. Bye bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz.